میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ اسلام ایک ایسی پرکشش عمارت ہے جو دیکھنے میں تو بڑی شاندار لگتی ہے. اس کا ایلیویشن بھی جو ہے بہت زبردست ہے اور بڑی کلرفل ہے، مگر اس عمارت کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ بلا بنیاد ہی کھڑی کر دی گئی. اب جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو میری اس بات سے بڑا تعجب ہوگا، وہ بہت جو ہے حیرت میں پڑیں گے کہ یہ کیا پاگل پن کی بات کر رہا ہے، یہ کیسی بات ہوئی. تو میں یہ بات بہت سوچ سمجھ کے ناپ تول کے کہہ رہا ہوں، اور جو اس کی حقیقت جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جو عمارت بلا بنیاد کھڑی کر دی جاتی ہے وہ بہت لمبے سمے تک نہیں چل سکتی، نہیں ٹک سکتی، اور اسلام کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. دیکھیں، یہ جس انداز سے یہ عمارت کھڑی کی گئی یا اس کو ابھارا گیا تھا، جس طرح سے اس کو جو ہے پورٹری کیا گیا تھا، ظاہر بات ہے اس کے پیچھے بہت سے ریزن تھی ہوں گی. ان کا اپنے سیاسی پہلو بھی ہیں، ان کے اپنے کچھ ذاتی مفادات تھے جنہوں نے اس کو تراشا، اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو جو بنایا، ان کے اپنے بہت سے مفادات ہو سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ اس سلسلے میں ابھی پچھلے کچھ عرصے سے جو آرکیالوجیکل جو ایویڈنسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو علم آثار کے جو ہے جو انکشافات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعی بے بنیاد ہے. اس عمارت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کو ڈر اور لالچ کی بنیاد پر جو ہے جو اٹھایا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے جس طرح کی باتیں ڈالی گئیں، واقعی یہ جو ہے اس کو تراشنے، اس کو بنانے والوں کا کمال ضرور ہے، یقیناً کمال ہے. یہ ہم ان کی تعریف کریں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجی بہت لمبے سمے تک چل نہیں سکتی. میں اس سلسلے میں ایک قرآن کی ایک ورس ہے، سورہ انفال کی، چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 60 میں ایک ورڈ ہے ترہبون. یہ آیت پوری ایسی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یہ ترہبون جو ورڈ ہے، یہ ایکچوئل اس ورڈ کا یعنی جو ریئل جو ٹرانسلیشن ہے ہمارے ٹرانسلیٹر جان بوجھ کے نہیں کرتے. عربی زبان میں ایک ورڈ آتا ہے ارہاب یا ارہابی. ارہاب کہتے ہیں ٹیررزم کو، ارہابی کہتے ہیں ٹیررسٹ کو، دہشت گرد. دہشت گردی اور دہشت گرد یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو تیار کیوں کرو؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے لیے جو اللہ کے اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کے خلاف تم کو ٹیررزم کرنا ہے، تم کو ٹیررسٹ بننا ہے. یہ ورڈ لٹرلی قرآن میں آیا ہے، اور یہ بات اکسانے کے لیے آئی ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے. یہ آرڈر دیا گیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تم تیاری کرو. کس بات کی تیاری کرو؟ یہ سب جو ہے آگے کہا گیا ہے. اچھا، کیوں کرنا ہے تیاری؟ تاکہ تم اللہ کے اور تمہارے دشمنوں کے خلاف ٹیررزم کرو، ان کے دلوں میں ٹرر پیدا کرو، ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور وہ تمہارے بھی دشمن ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے دشمن کہنے کا یہ بات ہی جو ہے بے تکی ہو جاتی کہ اگر واقعی کوئی اللہ ہے بھی تو اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے بھی؟ کون اس سے دشمنی کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں وہ تمہارے دشمن ہیں. اصل میں تم ان کو اپنا دشمن سمجھو. اچھا، کس کو دشمن سمجھو؟ جو کوئی اللہ کو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یا اللہ کی باتوں کو نہ مانے، وہ کافر ہے اور کافر تمہارا دشمن ہے. تو تم کو ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ ٹیررزم کرنا ہے.
इस आयत में ये लफ्ज आकर ये बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर टेररिज्म का ऑर्डर दिया जा रहा है। अच्छा, इस आइडियोलॉजी का बेस ही ये हो तो अब आप बताइए कि ये कितने लंबे समय तक चल सकता है। जब तक लोग इन बातों को, यानी अभी इंटरनेट का जमाना नहीं था तो बहुत सी बातें ऐसी थी कि जो है लोग सुनते थे, या फिर जो है अगर मान लें किसी के दिल में इस आइडियोलॉजी के बारे में कुछ डाउट आता भी था तो वो डाउट उसके अपने अंदर ही रह जाता, वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता था। लेकिन ये इंटरनेट जो है वो बला है कि इसके जरिए से हर एक के अंदर की बात दूसरे तक पहुंच रही है और आनन फानन पहुंच रही है। पूरी दुनिया एक दूसरे की बातों को देख रही है, सुन रही है, जान रही है, पहचान रही है। ऐसे दौर में इस तरह का जो वहमी तौर पर जो है जो आइडियोलॉजी को जो है जो उजागर किया गया, ये अब आप सोचिए कि कितना लंबा अरसा चल पाएगा, क्योंकि लोगों की आंखें खुल रही हैं। दिमाग के ऊपर जो ताले पड़े थे सदियों से, वो ताले जो है हट रहे हैं, खुल रहे हैं। तो इस दौर में तो ये सब मामला ज्यादा दिन चल नहीं सकते। इस्लाम के अंदर खुद से कोई पावर है और न जो है ये अपनी किसी इस तरह की जो है ताकत के जोर पर दुनिया पर जो है कोई अपनी हुकूमत कर सकता है, बल्कि सिर्फ अब तक जो है जो चलता रहा कि लोग इसको अंदर से नहीं जानते थे या इसको वाकई कुछ हकीकत समझते थे, तभी तो ये चलता रहा। लेकिन अब इसके अंदर की रियलिटी जो है लोगों के सामने आने लगी है, इसके अंदर कितना खोखलापन है ये लोगों को समझ में आने लगा है, और यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में इसको छोड़ रहे हैं। आज भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इसको छोड़ने वालों की तादाद, और आने वाले कुछ ही समय में एक वाकई सुनामी आएगी, यानी एक्स मुस्लिम की सुनामी आएगी। क्यों आएगी? जो भी इसको इस नजर से देखेगा वो समझ जाएगा कि इसका ताला माला क्या है, वो छोड़ देगा। ये मैं अपनी आंखों से देखी बातें कि जो है कितने ऐसे स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, जो मस्जिदों के खतीब हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, बड़े बड़े मदरसों के जो है वहाँ मुदर्रिस हैं, वहाँ के मुअल्लिम हैं, वो अंदर से बिल्कुल मेरी तरह हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, उनको जो है वो खुलकर सामने नहीं आते। तो अब आप बताइए कि जो है एक आम आदमी भी जब 20-20, 25-25 लोगों को जानता है कि ऐसे लोग उसकी नजरों के सामने हैं, तो अब आप देखिए कि दुनिया भर में कितने लोग होंगे जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़े भाई? तो इसलिए छोड़े हैं कि इस्लाम की रियलिटी वो अपनी आंखों से देख चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि इस्लाम के अंदर क्या क्या जो है, किस तरह के बड़े बड़े झोल हैं, कैसे बड़े बड़े जो है घपले हैं, उनको समझ में आ गया, छोड़ दिए। तो अब जो आज भी लेके चल रहे हैं वो या तो जो है यूं समझिए कि वो एक जज्बाती अंदाज में, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको इस्लाम से कुछ मफादात हैं, क्योंकि वो अगर खुलकर सामने आए तो जो है उनका बायकॉट हो जाएगा, उनकी हर तरफ से वो जो है कट जाएंगे, समाजी तौर पर कट जाएंगे, माशी तौर पर कट जाएंगे, इस डर से वो लेके चल रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जिस आइडियोलॉजी में इतने बड़े बड़े झोल हैं, वो और मजीद कितने दिन चल पाएगा बताइए भाई। रूहानियत की बात तो इसमें है नहीं, सारा का सारा मामला सियासी था, और सियासी क्या है ये भी लोगों को समझ में आ गया। जिन बुनियादों पर जो है ये इमारत खड़ी की गई, जिस तरह से मैंने अभी कहा, असल में वो बुनियाद है ही नहीं। खुद कुरान के अंदर अल्लाह भी गायब है, और जिसे मोहम्मद कहा गया, माना गया, मनवाया गया, वो भी गायब है। हाजिर तो ये दोनों भी नहीं है। इन दोनों के तोगरों को दिखा दिखाकर जो कुछ लोगों ने अपनी धांधलियां की और अपने अपने जो है जाती मफादात जो हासिल करने थे कर लिए, एक सदियां गुजर गई। आज एक तरह का जो है वो रस्सी जल चुकी है, उसका बल अभी बाकी है, ये चल रहा है मामला। लेकिन ये बल, जला हुआ बल, अब आप सोचें कि जो है कितने दिन चल पाएगा और किस आधार पर चल पाएगा, ये है मेरा सवाल। क्योंकि ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस्लाम नामी इमारत की बुनियाद नहीं है,
बड़े से बड़े स्कॉलर के साथ मैं इस बुनियाद पर या इस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि वो साबित करें कि खुद कुरान के अंदर अल्लाह हाजिर है और कुरान के अंदर मोहम्मद हाजिर है। अब आप बताइए कि ये दो तुगरे जिसको दिखाकर ये लोग जो है अब तक ये चूरन बेचते थे, जब ये दोनों जब दोनों तुगरे अगर गायब हैं तो इनके पास हाजिर है क्या? अभी जरा बताइए क्या हाजिर है? सिर्फ काली अकीदा, अकीदे के आधार पर ये आइडियोलॉजी कितना अरसा चल पाएगी, जबकि लोगों की आंखें खुल रही हैं। यानी अब आप देखिए कि कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर आपको एक्स मुस्लिम नहीं मिलेंगे, हर गली मोहल्ले में मिलेंगे। ये तो आज 2021 की बात है, आने वाले 5 सालों में देखें कि इनकी तादाद दुगनी हो जाएगी, तब क्या होगा? और मजीद एक 10 साल के बाद यही तादाद ये मल्टीपल होती रहेगी, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, लोगों के पास सवालात हैं, स्कॉलर के पास उनके जवाबात नहीं हैं। क्या हो रहा है जरा देखिए, लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं है इनके पास। आज भी जो है जब जवाब के नाम पर वो पुरानी जो है 50 साल पुरानी कैसेट चलाते हैं ये लोग, ये इस्लाम के स्कॉलर जो हैं वही पुराना राग अलापते रहते हैं। तो क्या जदीद जहन जो हमारी युवा है, जो सोचने वाले हैं, जो देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, तो क्या इन उलमा के इन जवाबों से वो मुतमईन हो पाएंगे? जदीद जहन को मुतमईन करने के लिए उलमा के पास जवाब नहीं है। मुझ जैसा शख्स जब जो है अगर 5 सवाल भी कर दूंगा तो 5 में का एक भी जवाब नहीं दे सकते उलमा। ये हाल है।